that you have to find the greatest common divisor of the string. Okay, so let's first understand the problems. That for two string s and t, we say t divides s. Okay, if and only if s equal to t plus t plus t plus t, that is t is concatenated with itself one or more times, given two strings str1 and str2, return the largest string x such that x divides both str1 and str2. Okay, so let's try to understand this problem first. Okay, so the problem is saying, so what the problem states, that you are given two string. Okay, we say t divides s. Let's take two string first. Let's take this two string. Okay, this is my two string str1 and str2. Okay, okay, this is my first string and this is my second string. Okay, so let's first understand this problem. What is the question is trying to say? That t divides s if and only if s equal to t plus t plus t plus t, मतलब s जो है वो t के कॉम्बिनेशन से बना हो। ठीक, मतलब ये जो s है, देखो यहाँ देखो, ये जो s है ना, ये मल्टीपल t के कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये अगर str1 है, मतलब इसको हम s डिनोट करते हैं, और अगर इसको t डिनोट करते हैं तो t क्या है, abc। और ये क्या है, ये एक t है और ये एक t है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू t प्लस t, यू कैन राइट इट एज s इक्वल टू t प्लस t। ओके, कूल। So the problem is says that given two string str1 and str2, return the largest string x such that x divides both str1 and str2। मतलब str1 और str2 में ऐसा क्या कॉमन चीज है जो ये दोनों चीज को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब देखो अगर हम ये दोनों में देखें तो इसमें क्या कॉमन है, abc, इसमें भी abc कॉमन। ठीक, तो हम लोग abc रिटर्न कर देंगे। ठीक, ओके, let's try another test case. Okay, so this is our first test case. Let's try with another test case. Okay, let's try with this. Copy, paste. Okay, so this is my first string and this is second string. What is this? This is my second string. Okay, this is first string and this is my second string. Okay, so let's try to understand what is common here. For this string, ab is there, ab is there, ab is there. Okay, for this t string, first is ab, then is ab. So multiple ab are consist here, and multiple ab's, by consisting of multiple ab, create this t string. So we have to return ab. Okay, means the repeating part which is built with same, मतलब इसमें भी सेम हो और इसमें भी सेम हो, वो रिपीटिंग पार्ट को हमें रिटर्न करना है। ठीक है, जिससे बन के इस, मतलब ये स्ट्रिंग भी उससे ही बना हो और ये स्ट्रिंग भी उससे ही बना हो। ठीक है, जैसे कि ए बी हो गया, जैसे कि यहाँ देखो ए बी सी, यहाँ पर एक ए बी सी है, यहाँ पर दो ए बी सी है, लेकिन कंटिन्यूअस पार्ट ए बी सी ही है। ठीक है, तो समझो इस बात को, क्या कहना चाह रहा है इधर। ओके ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट अगेन। ओके, सो लेट्स रिमूव इट। हाँ, तो इधर, सॉरी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। इधर ए बी है, इधर ए बी है, इधर ए बी है। ठीक है, इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी, मतलब इधर दो ए बी है, इधर तीन ए बी है।
लेकिन ए बी से ही बना हुआ है, ठीक है, मतलब ए बी के अलावा कुछ और नहीं है, जैसे कि इधर ए नहीं है, ए नहीं है, ठीक है, अगर ए हो जाता तो हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम लोग अगर ए बी, इसमें 2 है, इसमें 3 है, ठीक है, तो इसमें ए बी रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तीसरा टेस्ट केस देखते हैं, जैसे कि लिफ्ट और कोड, इसमें देखो इधर ना, इधर कोई कॉमन चीज नहीं है, तुम बोलोगे क्यों नहीं, इधर ई है, इधर ई है, लेकिन देखो भाई हमने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, अभी देखो, हमने बोला था कि सेम चीज रिपीट होना चाहिए, जैसे कि इधर ए बी सी हुआ, ए बी सी एक बार रिपीट हुआ ना इधर, और इधर 2 बार रिपीट हुआ, तो कॉमन पार्ट क्या है, जिसको हम बोल सकते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, स्ट्रिंग में हम लोग किए थे, ठीक है, तो प्रीफिक्स है इजी थिंग, प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स है जो कॉमन हो बोथ में, ठीक है, लेकिन इधर उसी प्रीफिक्स से ही बना होना चाहिए, ओके, इट्स क्वाइट सिंपल। Okay, let's take this example. This is one most interesting test case is given here. Okay, so let's take this and let's paste. Okay, so this is my first string, this is my second string. So what would be the output for this particular case, test case? So you say that okay, so this is AA, this is AA. Okay, that's look good, but see here. Let's see. This is triple A. This is triple A. You say, okay, it's quite simple. It's written triple A, but it's not true because AA is the only string. The other part is containing AAB. So we cannot return AAA. We return an empty string. Okay. So हमें तभी स्ट्रिंग रिटर्न करना है जब एक कॉमन प्रीफिक्स हो और उसी प्रीफिक्स से, चाहे वो प्रीफिक्स मल्टीपल टाइम यूज हो एक स्ट्रिंग में कुछ ही टाइम्स यूज हो, लेकिन उसी प्रीफिक्स से बना होना चाहिए। दैट्स इज आवर कंसेप्ट और दैट इज आवर अप्रोच। ओके, सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस? सो एक बारी के लिए मतलब हो सकता है कि ऐसा लगे कि ठीक है भाई, एक हैजमैप यूज करते हैं, एक सेट बना लेते हैं हम, और सेट में एक काम करते हैं कि हम लोग एक बारी में एक ही एलिमेंट पुश होगा, तो ठीक है, एस टीयर 1 से ए बी हो जाएगा, ए बी पुश हो जाएगा और कभी कुछ नहीं पुश होगा, ठीक है। और एस टीयर 2 में भी अगर इस टेस्ट केस के लिए देखें तो ये एस टीयर 1 में ए बी था, तो ए बी ही होगा, और इसमें भी देखो, इसमें भी ए बी ही होगा, क्योंकि सेट है ना, सेट में सेट क्या करता है, एक बारी में एक ही एलिमेंट को पुश करता है, अगर डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करता, तो ए बी हो गया, ठीक। तो ठीक है, अगर इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, तो ठीक है, तो अगर ए बी है तो ए बी रिटर्न हो जाएगा, हाँ ए बी मेरा आउटपुट है, ठीक है। अगर दोनों का साइज सेम हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है, दोनों का प्रीफिक्स सेम है। एक बारी के लिए ऐसा लग सकता है, ठीक है, लेकिन ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है, ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मतलब ऐसा लग सकता है कि एज अ बिगिनर कि ठीक है भाई, इसको हम हैश सेट से क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, तो देखो क्या दिक्कत आ सकता है। देखो, तो अगर इसको हम सॉल्व कर सके, मतलब करने जाए कि एस टीयर 1 को अगर सॉल्व करने जाए तो क्या आ सकता है दिक्कत। देखो, पहले आया, इसको हम सेम सेम तरीके से ए बी सी, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, ठीक है, इसके लिए बोल रहे हैं, ठीक। और एस टी आर 2 के लिए, स्ट्रिंग 2 के लिए भी देखो, स्ट्रिंग 2 के लिए क्या क्या आएगा, स्ट्रिंग 2 के लिए आएगा, देखो पहले ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया। ओके, सेम है, इसमें आपका साइज है, हाँ भाई, इसमें भी रिटर्न होगा ए बी सी रिटर्न कर दो, ए बी सी रिटर्न कर दो, होगा, हो सकता है, इट माइट बी द आंसर, इट माइट बी द आंसर। If I try to solve this problem, this test case, okay, so let's remove everyone, everything. Okay, so let's try to solve this two string. This is my str1 or this is my set for the str2. So let's
Put all of the A here. So one A is append here, and for this B, one B is here, and there is one A. Okay. So yeah, this is the my algorithm is work well. If I if this size is wrong, if my size is मतलब size अगर same नहीं है, ठीक है, if my size is does not match, size does not match, then we return basically the empty string. Okay, so this is my first approach that I am just trying to solve it as a beginner approach. That okay, so let's try an hash map. Okay, using hash map. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। दैट हम लोग दोनों हैश मैप बनाएंगे और उसमें एक एक करके एलिमेंट को हम पुश पुश करते जाएंगे, और उसके बाद अगर दोनों का लेंथ इक्वल नहीं आया तो हम लोग उसमें ये वो कर देंगे, उसमें पुश कर देंगे, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। और अगर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक सेट को पकड़ेंगे और उसमें से एक एक एलिमेंट को पुश करके एक आंसर स्ट्रिंग बनाएंगे, उसमें एंटर कर देंगे, ठीक है, अपेंड कर देंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये अभी तक के लिए गलत है, हम जो कर रहे हैं आंसर, ये गलत आंसर है, फिर भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, why this answer is error? Okay, let's run this. Let's write this code first. Okay, so unordered set int, let's say s1, unordered set int, this is s2. Okay, for let's use for each loop here. Okay, sorry, character, we are using string na, so why we using int? So char x is tier 1, and we'll just insert s1 dot insert x, and samely for str2 we s2 dot insert x. Okay, okay, so quite simple. सेट में एक बारी के लिए एक ही एलिमेंट पुश होगा, तो हम लोग इस बार चेक करेंगे कि इफ अगर मेरा s1 डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू s2 डॉट साइज, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, अगर नहीं हुआ ऐसा तो हम लोग स्ट्रिंग एक आंसर बनाएंगे जिसमें एम्प्टी होगा, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग एक एक करके s1 से जो भी यूनिक एलिमेंट्स है उसको उठाएंगे। ठीक है, ऑफ फ्रॉम s1 एंड ओके, लेट्स से इसको ऑटो ना करके कैरेक्टर ले लेते हैं, और इसमें आंसर प्लस इक्वल टू एक्स कर देते हैं, और लास्ट में हम लोग रिटर्न आंसर कर देंगे। ठीक, ओके, लेट्स रन दिस कोड। ओके, दिस इज गिविंग रॉन्ग आंसर, ABC CBA। ओके, इसमें ऑर्डर नहीं है, ठीक है, इसमें अनऑर्डर्ड है, इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, हम लोग सेट यूज कर लेते हैं। सेट में और अनऑर्डर्ड सेट में डिफरेंस क्या होता है, सेट में ऑर्डर्ड होता है। ठीक है, मतलब ऑर्डर्ड सेट में सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है सब कुछ। ओके, दिस इज गिविंग एक्सेप्टेड। ओके, फॉर ए टाइम that's my approach is right because it's giving accepted. Okay, let's submit this code. When I am trying to submit it, that it will give us the wrong answer. Yes, this is my wrong answer, this is my wrong answer. Okay, let's carefully observe this test case, why it's giving the wrong answer. Let's say according to my algorithm TAUX, okay, for this TAUX x, this should be the prefix, or this should be the repeating part for the each case, that is TAUXX, again TAUXX, again TAUXX. Let's see. Okay, TAUXX. Okay, so this part is repeating. We have to return this, but we have returning this because we are taking the ordered set. So this is ordered in the ordered format, it is returning,
and it is returning because we are using set, so it taking the at most one character at max. So it may be possible that one character repeating as a repeating format means ऐसे देखो ना x दो बार रिपीट हो रहा है एज अ रिपीटिंग कैरेक्टर, मतलब एज अ रिपीटिंग स्ट्रिंग, रिपीटिंग प्रीफिक्स। ओके, सो ऐसा हो सकता है ना कि दो बार होने वाला चीज प्रीफिक्स में आ जाए, ठीक है, जैसे कि एक्स एक्स टी ए यू एक्स एक्स, एक्स एक्स दो बार है और ये टी ए यू एक्स एक्स रिपीट होने जा रहा है। तो अगर हम लोग सेट यूज करते हैं तो ये एक बार ही आएगा और रिपीटिंग कैरेक्टर में से जो है वो हमारा गलत आंसर देगा, ठीक है। तो ये तो गलत आंसर हो गया, ठीक है, इसको हम नहीं कर सकते, तो ये होता है तुम्हारा रॉन्ग, ये होता है रॉन्ग आंसर, रॉन्ग। सो नाउ व्हाट शुड आई डू, हाउ कैन वी सॉल्व दिस थिंग? okay, so now the let's carefully observe the question again. The question name is greatest common divisor of string. Okay, so greatest common divisor. Okay, so why not we find the divisor, what the divisor means? Greatest common divisor, that is GCD. If you know the basic math, then you also know the GCD point, that if we trying to find the GCD of 12 comma 24, so what we have done, what we have done, the GCD of this them are 12. Okay, this is my greatest common divisor. Okay, this is the 12. Okay, and how we can find this 12 from this यूक्लिडियन थ्योरी? हम लोग जब छोटे थे तब लोग जीसीडी में एक यूक्लिडियन थ्योरी पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो उसमें क्या बोलता था कि मॉड्यूलस करना होता था, ठीक है, मतलब जो रिमाइंडर आता था उसको हम लोग डिवाइड करते थे। जैसे कि हम लोग अगर रिकर्सिवली सोचे इस चीज को, ठीक है, छोड़ो छोड़ो पूरा छोड़ो, तो जीसीडी अगर निकाला जाए तो कैसे निकाला जाता है? तो अगर सोचे कि देखो 12, उसके बाद ये आ गया 24, उसको हम डिवाइड करते थे कैसे, ऐसे करके, तो कितना आता था 12 2 ज़ा 24 और इसमें आता था 0। ओके, तो इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करा जा सकता। ओके, सो इसमें से जो मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आता था उसको बोलते थे हम, जैसे कि 12 आ गया, ठीक, इसको हम बोलते थे 12। ओके, जैसे कि 2735, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, क्या होगा इसका? इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2735। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, ठीक, यूजिंग रिकर्सन वी कैन सॉल्व इट। ओके, जैसे वैसे भी जीसीडी को हम लोग उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है, सी प्लस प्लस में। लेकिन अगर रिकर्सिवली कैलकुलेट करना है जीसीडी को तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कैलकुलेट दैट 2 3 ज़ा और 2 24 2 ज़ा 48। ओके, सो इट इज कमिंग टू 12। ओके, 12 और 24, then this is 12 2 ज़ा 24 and it is coming 0. So if when it is coming 0, then it is the our HCF or highest common factor, or you can say this is my GCD. Okay, this is my concept. So this is very easy thing and very simple thing, you can easily understand it. So what should I do? What can I write? That GCD of A comma B is equal to GCD of B modulus A, I'm sorry, B modulus A, and there is B. Okay, and always A should be less than B. A should be less than B. Okay, A should be less than B. Okay, okay. So this is my GCD formula for a particular thing. So what is the need of GCD here? Basically, we need to calculate the GCD of length of the two string here. This is my the
approach of this particular question. Okay, so what is the मतलब अगर हम लोग जीसीडी निकाल लें, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या बेनिफिट्स होगा कि अगर हम लोग जीसीडी निकाल ले तो क्या बेनिफिट्स हो सकता है कि या देखते हैं उसको। ठीक है, तो अगर इसको पकड़े, ठीक है, एबीसी एबीसी, तो लेट्स से str1 इज इक्वल टू दिस abc abc, and again let's write here str2 is equal to abc. Okay, so what is the length of str1? The length of str1 is 6. Okay, the str2 length is 3. Okay, let's try to find out the gcd of 3,6. 3,6. Okay, so what is the gcd of 3,6? It is very simple, very simple, very simple. How you can calculate the gcd of 3,6? Okay, so first of all you have to find that 3 6. Okay, so 3 here, 6 here, 3 2s are 6, and it will become 0. So this is 2, this is 2, this is 2. मतलब हम लोग 0 से 2 इंडेक्स तक जाएंगे तब हमें हम लोग का प्रीफिक्स मिल जाएगा। ठीक, तो ठीक है, तो ये तो एक टेस्ट केस के लिए हुआ, दूसरे टेस्ट केस के लिए भी प्रूव करके दिखाओ। ओके, सो दूसरे टेस्ट केस के लिए भी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, सो अगर दूसरे टेस्ट केस के लिए हम लोग चेक करें तो देखते हैं अगर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो दूसरे टेस्ट केस के लिए जैसे कि ए बी ए बी ए बी। ओके, सो दिस टेस्ट केस के लिए चेक करते हैं। अगर इस टेस्ट केस के लिए जाए, देखो, okay, this is my test case number 2. Here the length is 6, length is 4, so easily you can say the common part is AB. So if I try to HCF or GCD same ही होता है, GCD of 6,4, sorry 4,6, always less first, then 4, and here is the 6, so 4 ones are 4, and here is 2, then again we do 4 2s are 4, and it is done. Okay, so what is this? This is 4, this is 2, मतलब दो लेंथ का, ठीक है, दो लेंथ का हम लोग का दो लेंथ का प्रीफिक्स लेना है इधर से। तो दो लेंथ का प्रीफिक्स मतलब ये हो गया, दो लेंथ का प्रीफिक्स। इधर में से अगर देखते हैं तो इधर देखो 6 और 3 था, तो 3 और 6 के मतलब 3 लेंथ का लेना था। ठीक है, 3 लेंथ का लेना था हमें। 3 और 6 का अगर डिवाइजर निकाले तो 3 लेंथ का लेना था, और इधर हम लोग का क्या लेना था, दो निकाला है, इधर 2 निकाले हैं, इधर मतलब 2 लेंथ का लेना है। तो हम लोग जीसीडी से लेंथ मिल जाएगा और उस लेंथ से हम लोग प्रीफिक्स निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग उस प्रीफिक्स को चेक करेंगे हर एक स्ट्रिंग के लिए। अगर हर एक स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है वो, तो ठीक है भाई, वो वही होगा हमारा आंसर। अगर नहीं करता है, एट अ टाइम एक स्ट्रिंग में अगर कुछ उल्टा पुल्टा सा आ गया, मतलब जैसे कि उसमें आया था कुछ भी एक्स्ट्रा चीज आ गया, जैसे कि ऐसा आ गया कुछ ए बी सी सी आ गया, देखो लास्ट में सी सी आ गया, तो हम लोग चेक करते रहेंगे कि ए बी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, str1 में चेक करेंगे, ए बी एग्जिस्ट करता है, फिर से हाँ चेक करते हैं, फिर से चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे। अगर एक भी बार वो मतलब मिस हो जाता है, प्रीफिक्स नहीं इक्वल नहीं आता प्रीफिक्स के इक्वल, तो हम लोग ब्रेक कर देंगे। ठीक है, वरना हम लोग करते जाएंगे इटरेट। ठीक है, और इसमें भी सेमली चेक करेंगे। तो ठीक है, इट्स वेरी इजी थिंग। फर्स्ट टर्न इज int okay, here says that always t divides s, t हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग L1 निकालेंगे, str1 डॉट साइज, और इसमें से int L2 भी निकालेंगे,
str2 डॉट साइज, और फिर हम लोग जीसीडी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ठीक है, तो इंट प्रेफिक्स लेंथ हो जाएगा हमारा जीसीडी ऑफ L1 कॉमा L2, सॉरी L2 कॉमा L1 होगा क्योंकि ये छोटा होता है, L1 कॉमा L2। Okay, so up to this done. Okay, so this problem is saying that prefix plus equal to str of I. Okay, let's check, हम लोग चेक करेंगे in str1 कि अगर वो प्रीफिक्स str1 में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग एक int I रख देंगे 0 और int j रख देंगे 0 और एक स्ट्रिंग करंट स्ट्रिंग रख देंगे। ठीक है, इस स्ट्रिंग का अभी काम बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके काम करेंगे। व्हाइल जब तक मेरा i इज लेस देन str1 डॉट साइज है तब तक हम लोग वो करते जाएंगे। क्या करेंगे, करंट प्लस इक्वल टू str1 ऑफ i। ओके, जब मेरा करंट का लेंथ बराबर प्रीफिक्स हो जाए तो हम लोग कुछ काम करेंगे, कुछ चेक करेंगे, चेकिंग वगैरह करेंगे, वरना हम लोग i प्लस प्लस करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरा करंट इक्वल टू प्रीफिक्स आया कभी भी तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि देखो कि चेक करो कि अगर मेरा सॉरी करंट इक्वल टू अगर प्रीफिक्स आता है कभी तो ठीक है, मतलब नहीं, पहले तुम चेक करो कि करंट का लेंथ अगर प्रीफिक्स का लेंथ के बराबर आए। ठीक है, मतलब अगर जो अभी तक का जो करंट का लेंथ है हम लोग तो निकाल सकते हैं। ठीक है, वो तो हम लोग निकाल सकते हैं, जो जीसीडी का लेंथ है, करंट का लेंथ अगर प्रीफिक्स का लेंथ के बराबर आए तो छोड़ो ना, इसको क्या करें, इसको रहने देते हैं। एक बार सीधा चेक कर लेते हैं कि अगर करंट बराबर हमारा प्रीफिक्स आ जाएगा कभी। ठीक है, आई प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ ठीक है, या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, करंट का लेंथ अगर हमारा प्रीफिक्स लेंथ के बराबर आ जाए तो, ओके, प्रीफिक्स के लेंथ के बराबर आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, करंट जो करंट है चेक करेंगे वो अगर प्रीफिक्स के बराबर है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, करंट को फिर से वापस के जैसा कर दो। ठीक है, और अगर करंट कभी भी अगर ऐसा हो रहा है कि करंट प्रीफिक्स के बराबर नहीं आ रहा है तो एल्स में रिटर्न कर दो, हमेशा एल्स में रिटर्न कर दो। क्या क्या रिटर्न करना है कि एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, और एक चीज करना है कि अगर मेरा करंट अगर प्रीफिक्स के बराबर है तो ठीक है, करंट को मतलब देखो ये आया, हाँ, और ये मेरा प्रीफिक्स के बराबर है तो ठीक है, तो करंट को प्लस प्लस कर दो, सॉरी, एंड आई को भी प्लस प्लस, आई फिर से स्टार्ट हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। हाँ, ये हो गया स्टार्ट। ठीक है, ये हमेशा हिट करेगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट कंडीशन, और जे के लिए हम लोग फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये वाला जे के लिए भी एक बार स्टार्ट कर देंगे, सेम कंडीशन, सॉरी रन हो गया। सो फॉर दिस description, for this thing, let's say if this is str of 2 and let's say this is j, current is str of 2, current length is equal to prefix length, and if current equal to prefix then current is this, or else we'll move the j as forward. Okay, and finally if all is done then we just return our prefix. Okay, that's it.
Okay, that's it. This is the problem. Let's check in str1, and we have to check in. Let's check in str2. str2 में भी हम लोग चेक कर लिया और प्रीफिक्स रिटर्न कर दिया। ठीक, रन करते हैं इसको। ओके, इट्स गिविंग रॉन्ग आंसर। लेट्स सी व्हाट इज द रॉन्ग आंसर। अच्छा, एक्सपेक्टेड एबीसी। अब हमें ये वाला इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। तो लेट्स डिबग दिस कोड। ओके, लेट्स चेक, लेट्स डिबग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्रीफिक्स देख लेते हैं, प्रीफिक्स सही आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग देख लेंगे प्रीफिक्स सही आ रहा है कि नहीं। तो फॉर ईच टेस्ट केस प्रीफिक्स, हाँ प्रीफिक्स इसमें एबीसी आ रहा है। ठीक है, इसमें ए बी आ रहा है। ठीक है, प्रीफिक्स तक तो सही आ रहा है, प्रीफिक्स तो सही आ रहा है। ठीक, हम लोग शायद इसमें कुछ दिक्कत आ रहा है। इसमें करंट में हम लोग हमेशा एच टी आर ऑफ आई ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ए ऐड हो गया, फिर आया, फिर आई प्लस प्लस हुआ, बी ऐड हो गया। अगर करंट का लेंथ प्रीफिक्स के लेंथ के बराबर हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करंट बराबर चेक करते हैं, करंट इक्वल टू प्रीफिक्स है कि नहीं। ओके, सो ओके, नो प्रॉब्लम। इफ करंट इक्वल टू प्रीफिक्स, देन वी विल बेसिकली डू करंट को हम लोग नल इनिशियलाइज कर देते हैं, मतलब नेक्स्ट इटरेशन के लिए करंट को नल सेट कर देते हैं, फिर से करंट में हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक, हाँ यही तो होता है। एरर कहाँ रहा है। Okay, let's try out our current value here. Okay, so what is this, what is the error for this? The error for this is basically I cannot find it. If I tried current is here. Okay, so I am doing I plus plus. It is quite simple, it is quite right. Okay, so for this, oh my god, is I do here str up to j. Okay, it will be j because I am doing here j. Okay, so let's run this code again, and okay, it's coming accepted. Okay, if I submit this, okay, let's submit this thing, and if I submit this, and it will be accepted. Okay, yeah. So let's again a quick recap for this code. So first of all, we have calculated the GCD of two length of string. Why I am using L2 of L1? Because here is clearly saying that T divides S, means T is the small and S is the big. Okay, the bigger than the string 2 or T. Then we calculate the prefix. Basically up to this size we can calculate the prefix. Basically this is the GCD of the two number is basically the prefix length. Okay, and then we basically let's check for the str1, and we are checking in str1 if any part of the particular length of the particular prefix length is the mismatch with the string. If mismatch, then we return the this, and if not mismatch, then we'll again go for the another iteration. And for the str2 again for this same. Okay, so what would be the time complexity for this particular code? The time complexity of the particular code, what would be the time complexity? We are basically traversing both string at a time. Okay, if this string is big of, अगर एक स्ट्रिंग का लेंथ m होता है और अगर स्ट्रिंग का लेंथ n होता है, तो हमेशा हम लोग m और n ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो big of m plus n होगा.
ठीक है। और इधर प्रीफिक्स का लेंथ कैलकुलेट करने में तो हम लोग का बिग ऑफ जितना जीसीडी है, जीसीडी ऑफ L2 ऑफ L1, वो तो नेग्लिजिबल है, ठीक है। लेकिन जो हमेशा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो तो बिग ऑफ m+n ही रहेगा। तो दैट्स इट, दिस इज द प्रॉब्लम statement is saying, and this is the solution, and 60. Okay, so if I try to find the 24 and 60, so how Euclidean theory says that first